Good morning, everyone. Students, as you know, in the previous class, we have started our new chapter, Bank Reconciliation Statement, and I hope its meaning is clear to you. Bank Reconciliation Statement. We reconcile the passbook which is provided by the bank, and the bank column of your cash book. Okay, means cash book and passbook. We are reconciling the cash book and passbook. I hope it's clear. Whenever we talk about the cash book, it means we are talking about the bank column of the cash book. Fine. Now certain reasons are there because of that your cash book and passbook doesn't match, and we have discussed a few reasons in illustration number 1, which we have discussed in the previous class. Okay, so instead of the theory part, I have taken the practicals directly because you will understand better. Okay, if I start the theory, so you would not understand the situations, but if we are dealing with this, so this will be easy for you to understand. And I have told you the 4 balances which is given in your book also. Here you can see on page number 15.5, we have a debit balance of the cash book. Okay, cash book is having debit balance, so this is your favorable balance, that means you have money in the bank. And credit balance of the passbook is favorable. Fine. And if you have the credit balance of your cash book, so that is overdraft, means unfavorable balance. Okay, and debit balance of your passbook is unfavorable balance. Fine, means overdraft. So cash book has a debit balance positive, favorable, and credit balance of the cash book is overdraft, unfavorable. And in the same way, passbook is containing credit balance positive, means favorable, and debit balance of passbook is your negative balance, means overdraft, unfavorable balance. Okay, and we take the balance of any one and we can proceed with the question. So first we have started taking the balance as per cash book. So we have discussed the first illustration. Today let's take illustration number any one we can take. Let's take third one, so you will find something new to learn. So illustration number 3 is telling on 30th June 2016 the bank column of Anil's cash book. Be attentive, students. It's talking about bank column of cash book showed a balance of rupees 8,250. On examination of the cash book and bank statement, you find so and so. Okay, so we can start, and its format is very simple. Here you can take plus, here you can take minus, and these are the particulars, and it's given that cash book balance, so you can take balance as per cash book, and this is your debit balance. And wherever you have a positive balance, means favorable, we start with the plus, and wherever you have overdraft or unfavorable, you start with the minus one. So here this is 8250. Okay, now I will find out the points which I have to add and then less. So let's see. The first one is telling out of total checks amounting to rupees 8,000 issued, check amounting to rupees 5,800 have been presented for payment up to 30th June 2016. Students, take care please. Here dates are very important. You just check on which date you are preparing. You are preparing on 30th June 2016. Keep in your mind while going through all these statements. Okay, so first one is telling out of check. Now always they won't give you the straight statement. आपको सीधा सीधा question नहीं मिलेगा. Okay, they will play a game with you and you have to find out the right thing. So it's telling out of total checks amounting to rupees 8,000 issued, जो टोटल चेक आपने इशू किए थे यानी आपने दिए थे, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th June 2016. सी व्हाट इट इज टेलिंग. इट्स टेलिंग कि आपने टोटल 8,000 के चेक इशू किए थे. इशू करने का मतलब
जैसे ही आपने चेक किसी दूसरे को दिया, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। बैंक को क्रेडिट करना यानी कि बैंक कॉलम ऑफ योर कैश बुक, ओके। यानी कैश बुक में से आपने 8,000 क्रेडिट कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन हुआ क्या, check amounting to rupees 5,800 have been presented for payment up to 30th June। यानी जिस दिन आप रिकनसाइल कर रहे हैं उस दिन तक सिर्फ 5,800 के चेक ही प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। यानी जिन पार्टीज को आपने इशू किया था दे हैव प्रेजेंटेड this much checks only, okay, and the rest of the amount is not still presented for payment, so we have to find out the balance amount, okay। 8,000 was the total and they have presented 5,800, okay, so the balance is 2,200, all right। so 2,200 का क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। आपने टोटल माइनस किया था 8,000 अपनी कैश बुक में से, और पासबुक में से कितना माइनस हुआ है, 5,800, ठीक है। सो लेट अस राइट हेयर passbook, you can choose any method which you find convenient। so what I have to do, I have taken the balance of my cash book, ठीक है। कैश बुक में से मैंने क्या किया, ये ज़्यादा माइनस कर दिया, ये जो डिफरेंस है, क्योंकि मैंने 8,000 माइनस किया है ना कैश बुक में से, और पासबुक में से सिर्फ इतना माइनस हुआ है, तो कहाँ पे ज़्यादा माइनस हो चुका है, कैश बुक। ये आपने कैश बुक में किया 8,000, तो कैश बुक में से कितना ज़्यादा माइनस हो चुका है, 2,200 यू हैव रिड्यूस्ड। आई मीन आपने टोटल अमाउंट रिड्यूस किया है, लेकिन इतना तो वहाँ भी हो चुका है, तो यहाँ 5,800 तो आपका सिमिलर है, दोनों में माइनस हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या रह गया, 2,200। तो ये आपका कैश बुक में से माइनस हो चुका है, राइट, और पासबुक में से नहीं हुआ है। तो पासबुक में ज़्यादा बैलेंस है ये वाला 2,200, क्योंकि उसमें से माइनस नहीं हुआ तो ज़्यादा है। सो व्हाट शुड आई डू दैट आई शुड रीच एट दैट लेवल। तो मैं क्या करूँ कि मेरा बैलेंस भी उतना हो जाए, आई विल ऐड, आप ऐड कर देंगे 2,200। आई होप इट इज़ क्लियर हाउ वी हैव डन। मीन्स हमें पासबुक के बराबर जाना है। क्या करूँ ऐसा, इसमें प्लस करूँ या माइनस करूँ कि मेरा बैलेंस पासबुक के बराबर पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ से 2,200 माइनस कर दिया था ना एट द टाइम ऑफ इशू, सो आई विल ऐड बैक, सो माई बैलेंस विल बी इक्वल टू पासबुक, ओके। सो यू कैन राइट द लैंग्वेज वट एवर इज गिवन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। नेक्स्ट इट इज डीलिंग सेकेंड पॉइंट, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹6,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। पहले वाले में था इशूड, यानी आपने इशू किया था, आपने चेक काटा था, आपके यहाँ से पैसा चला गया। अब है सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी ये चेक आपको मिले थे और पार्टीज ने आपको दिए थे, आपके पास इकट्ठे हो गए, अब आपने इन चेक्स को बैंक में भेजा है कि इस पे पैसा कलेक्ट करके लाओ, राइट। दैट मीन्स यू हैव सेंड द चेक फॉर कलेक्शन। सो इट्स टेलिंग आउट ऑफ टोटल चेक थे हमारे पास 6,000, यू सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, आपने बैंक में भेज दिए कलेक्शन के लिए। तो जब आपने बैंक में भेजे तो व्हाट यू हैव डन स्टूडेंट्स, 6,000 आपने अपने अकाउंट में ऐड कर लिया कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। चेक आते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक डेबिट करते हैं। नाउ चेक्स ऑफ ₹4,100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30th June। अब क्या हुआ इसमें कि आपने 6,000 के चेक भेजे, तो यानी आपने 6,000 अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया, लेकिन आपकी पासबुक में, ये जो पासबुक है इसमें कितना क्रेडिट हुआ, यानी कितना जमा हुआ पासबुक में, 4,100 ओनली, ओके। 4,100 उसमें जमा हो गया। तो अब डिफरेंस कितना आ गया आपका, 6,000 आपने अपने यहाँ प्लस किए थे, 4,100 बैंक ने प्लस किए हैं, ठीक है। सो द डिफरेंस इज 1,900। तो 1,900 क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, कैश बुक में आपने पूरा 6 ऐड कर लिया था, लेकिन बैंक में हुआ 4,100, तो ज़्यादा ऐड हो गया कहाँ पे, कैश बुक के बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे हमारे पास 1,900 का ज़्यादा बैलेंस है। सो व्हाट शुड आई डू एज आई रीच विद एट द लेवल ऑफ पासबुक। सो अर्लियर आई हैव एडेड, तो अब मैं उसको माइनस कर दूँगी, यानी जो आपने पहले कर रखा है उसका रिवर्स कर दो। आपने प्लस किया था, 1,900 से ज़्यादा हो गया, अब आप उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस वाले में आपका 1,900 आ जाएगा, ओके। सॉरी, राइट इन दिस कॉलम माइनस। नाउ नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन,
On 28th June, a customer deposited rupees 3,500 direct in the bank account, but it was entered only in the passbook. Okay, so it's telling 28th June under this date only. Okay, so on 28th June, a customer deposited 3,500 direct in the bank account, but it was entered only in the passbook. It's very simple to understand. It's telling एक कस्टमर थे, उन्होंने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, बट आपने कैश बुक में एंटर नहीं किया. ठीक है, कितना था ये? 3,500 डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन योर पासबुक. तो पासबुक में आपके पास 3,500 आ चुका है. ओके, आ चुका है पासबुक में 3,500 डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली. तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बट कैश बुक में आपने एंटर नहीं किया. नो इन्फॉर्मेशन इज देयर. तो कैश बुक में बैलेंस कम है और वहाँ पे ज़्यादा है. सो व्हाट शुड आई डू कि मैं उसके बराबर पहुँच जाऊँ. पासबुक में भी कैश बुक में भी प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना. सो आई विल ऐड इन कैश बुक. ओके, नेक्स्ट है हमारा 4th वन. डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज़. ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक. कैश बुक में आपने पढ़ा है कैश बुक. ओके, तो डेबिट साइड कौन सी होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश बुक के डेबिट साइड में क्या आता है? जो पैसा आपको रिसीव होता है, आने वाली तरफ है डेबिट साइड. ठीक है, तो यहाँ कहा है डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक, यानी कि बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज़. यानी डेबिट साइड में आपका 100 रुपीज़ ज़्यादा डल गया. ओवरकास्ट, ओवर मीन्स ज़्यादा, अंडर होता है तो कम है. ऑल राइट, सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन सॉल्व इट. सो हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज़, यानी कि कैश बुक में 100 रुपीज़ ओवरकास्ट हो गया, ज़्यादा आ गया. तो यहाँ पे ज़्यादा दिखाया जा रहा है. ये जो बैलेंस है 8250, इट इज़ कंटेनिंग 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, बट पासबुक में सब कुछ सही है, वहाँ कोई गलती नहीं हुई है. ठीक है, सो दिस रिकॉन्सिलिएशन कैन बी ड्यू टू मिस्टेक ऑल्सो. सो हेयर द मिस्टेक इज कैश बुक में 100 रुपीज़ ओवरकास्ट हो गया, ज़्यादा हो गया, वहाँ नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या करूँ कि हमारी गलती ठीक हो जाए और उसके बराबर बैलेंस आ जाए. पहले गलती से प्लस हो गया था, अब उसको माइनस कर देंगे. सो आई विल रिड्यूस 100 रुपीज़ आउट ऑफ दिस. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एक्सप्लेनिंग no entry has been made in cash book for the rent of rupees 800 paid by bankers according to Anil's standing instruction. Okay, so these were the books of Anil. No entry has been made in the cash book for rent. इस कैश बुक में रेंट की कोई एंट्री नहीं हुई है. कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. अनिल ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी बैंक को कि प्लीज़ पे दिस रेंट टू सच एंड सच पार्टी. ओके, वेन एवर इट इज़ ड्यू. राइट, तो रेंट ड्यू हुआ, बैंक ने ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग 800 रुपीज़ बैंक में से पे कर दिया. बैंक में से पे करना यानी पासबुक से 800 रुपीज़ कम हो जाना. ओके, एंड वी डिडंट एंटर हेयर, हमने यहाँ कोई एंट्री नहीं की है, तो पासबुक से 800 रुपीज़ पेमेंट हो गया, कम हो गया, लेकिन यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा है. यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है, तो उसके बराबर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ से भी माइनस कर देंगे. राइट, सो योर कैश बुक विल बी इक्वल टू पासबुक. सो आई विल रिड्यूस 800 आउट ऑफ दिस. राइट, so students, you have to write the proper transaction over here. Okay, I'm not writing just to save the time, but you have to write. Next transaction, it's telling point number 6. The passbook showed a credit balance of 320 for interest and a debit of rupees 40 for bank charges, but these have not been entered in the cash book. Okay, both the transactions are done by the bank. So try to understand, students. I've told you in the previous class, when something is credited in the passbook, यानी कि पासबुक में आपका पैसा जमा हुआ है, and something is debited in the passbook, यानी आपका पैसा बैंक से निकल गया है, पासबुक में से कम हो गया है. ठीक है, now पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 इंटरेस्ट. पासबुक में क्रेडिट हुआ है, यानी कि आपकी पासबुक में प्लस हो गया है 320. ओके, पासबुक में 320 प्लस हो गया, कैश बुक में नहीं है, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में नथिंग हैज़ बीन डन. तो यहाँ पे बैलेंस कम है, वहाँ 320 बढ़ चुका है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी हम प्लस कर देंगे. सो
their balances will be equal. And next it is explaining that debit of ₹40 for bank charges. बैंक ने क्या किया, 40 रुपीज़ आपके पासबुक में डेबिट कर दिया. 40 रुपीज़ डेबिट करना यानी कि माइनस कर देना. -40 रुपीज़ पासबुक में कर दिया है, पासबुक में से कम हो गया पैसा. ओके, कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करें वहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ भी 40 रुपीज़ आप माइनस कर देंगे माइनस कॉलम में. इज दैट क्लियर? सो दिस वे वी हैव डन दीज ट्रांजेक्शंस. फाइन. नाउ यू डू द टोटल ऑफ प्लस एंड माइनस, एंड इन प्लस वी हैव 14,270 and in minus we have 2,840. now if you find out the balance, means ये प्लस वाले में से आप माइनस वाला रिड्यूस करेंगे, 2840, so you have 11,430. so this is your balance as per passbook, and this is positive, so it is containing credit balance. Okay, so once again I'm reminding you students, when we are starting with the plus one, okay, this is your plus column, this is minus one, and here you can see that we have a balance of the plus. means positive में जब आपका आता है, प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो आपके पास जो बैलेंस है ये पॉजिटिव बैलेंस है. ठीक है, एंड यहाँ अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पासबुक लिखेंगे, एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल वॉच, आई विल बी टेकिंग पासबुक का बैलेंस जब हम यहाँ लेंगे तो यहाँ कैश बुक से एंड करेंगे. ऑपोजिट बैलेंस से हमें एंड करना है. ठीक है, जब ये पॉजिटिव में आता है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है. अगर ये नेगेटिव में आ जाता, मीन्स हेयर इट वॉज 14,270, यहाँ पे 15,270 आता, ये ज़्यादा हो जाता ना माइनस वाला, तो 1,000 का जो डिफरेंस आता वो आपका डेबिट हो जाता पासबुक. पासबुक का डेबिट हो जाना यानी कि नेगेटिव बैलेंस हो जाना, ओवरड्राफ्ट हो जाना. इज दैट क्लियर? अनफेवरेबल. ऑल राइट, so here we have completed this illustration. Well students, try to do the maximum questions which you can do, similar kind of all the questions, and there is nothing special now in this chapter. If you have understood all that, so a few more transactions I have to explain, rest of the things you can do yourself. You need only guidance. So this is very easy chapter. So what to do, I will be assigning some illustrations and questions. So you may find some problem while doing this. Means suppose transaction number 5 नहीं आया है ना, इस क्वेश्चन में 3 नहीं आया, so just mark that and you can ask me later on. all right, so just complete all the questions till illustration number 5 and similar number of question, and then we have next tomorrow, when credit balance unfavorable, this we will take later on. Fine, we will discuss in the next class what to do and what not to do. all right students, so keep practicing of all these questions. Thank you.